Alright guys, as you know that सड़ा हुआ संतरा is gone. नहीं सर इतना नहीं जिन्होंने बेईमानी की थी मशीना में बेईमानी मुहैया हो गई सर। पर ये जाने के पहले एक बकचोदी करके गया था कि इंडिया जहर इज फिल्थी एंड ये वो। Look at India. It's filthy. The air is filthy. मैं जो अच्छा हुआ हार गया। गांठ बढ़ गई लाज जो टूटा सपनों का महल। पर एक बात तो है, जो इसने बोला उसमें कुछ सच्चाई तो है, कुछ तो क्या चूतिया तो तू है। आज समझते हैं थोड़ा। In US presidential debate, he said India's air is filthy. The air is filthy. But apart from air, there is one more thing which is shaming us. Poor sanitization. In short, खुले में हगना बंद करो। पहले उस पे बात करते हैं, उसके बाद एयर पे आएंगे। You know guys, you always use this line as a fun thing. I mean, yeah. खुले में हगना बंद करो। मतलब कोई बकचोदी करता है, कोई फालतू का काम करता है तो हम ये बोल देते हैं। खुले में हगना बंद करो। पर सच बात तो ये है कि पोर सैनिटाइजेशन की वजह से 2017 में 3.5 लाख लोग मरे हैं, उनकी जान गई है। ये प्रॉब्लम है, सच है। देश संकट में है। ये जो ग्राफ आप देख रहे हो उसमें सेकंड नंबर पर आप देखोगे तो सबसे ज्यादा मौतें दूसरे स्थान पे वायु प्रदूषण की वजह से होती है, और इस पे हम बात करेंगे थोड़ी देर में। यू नो व्हेन जो बाइडेन बिकेम अ प्रेसिडेंट, पीपल वर लाइक कनेक्टिंग डॉट्स एंड ऑल। यस, ही इज द चाइल्डहुड फ्रेंड ऑफ मिस्टर मोदी। मेरे कपड़े फाड़े, मुझे चांटे मारे और पूछा अच्छे दिन कब आएंगे। समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि वो देश जो हमारे पास के हैं, जिनकी जीडीपी हमसे बहुत कम है, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, इन देशों ने भी, yes, these countries achieved better level of sanitization. Uzbekistan 100%, and if you talk about Myanmar and Vietnam, they have achieved double. मतलब एक बंदे के लिए 2 टॉयलेट है वहाँ। चल मैं चूतिया। You won't believe, but this sanitization thing is affecting our GDP. Yes, poor sanitization की वजह से इतनी GDP गिरी है हमारी। मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप मतलब यूएस प्रेसिडेंशियल डिबेट में बकचोदी कर रहा था, थोड़ा दुख हुआ, लेकिन इतना छोटा पहले कभी नहीं हुआ होगा। प्रॉब्लम तो है। How does this pollution make you feel? We are feeling in eyes, in throat, but what we can do? We are in a gas chamber. There is no remedy. Yes, we have the problem and we have to solve this problem. And this criticism is going on for so long. CNN, 6 November 2019. School was shut and flights diverted. But air pollution still isn't a political issue in India. And cars that are stuck in traffic produce more pollution. मतलब हमारे गोदी चैनल्स को छोड़ो, वो तो मतलब गटर हो चुके हैं। लेकिन न्यूयॉर्क टाइम्स में इस बात पे डिस्कशन हो रहा था कि क्या होगा जब इंडिया की टॉक्सिक एयर मिलेगी कोविड-19 से। That was the headline. 15 अक्टूबर 2020, 4 November 2019, Washington Post. They were criticizing Delhi because of the toxic air. India is home to 14 out of the 20 world's most polluted cities, and that is the latest from the World Health Organization. If that is not scary enough, sample this. And we have to solve this problem instead of getting, angry and all. Gulf News, 21st October 2020. मतलब हम मुंबई को शंघाई बनाने का सपना कब से देख रहे हैं, लेकिन yes, Delhi should learn something from Beijing. Air Quality Index measures different pollutants in the air. In Canada, the numbers tend to be in the green. More polluted places like LA or Beijing are moderate in yellow. In India, however, it often goes off the scale in red. ये The Conversation International 20th December 2017 में ये आर्टिकल पब्लिश हुआ था। तो संतरा अकेला नहीं है। The air is filthy. बहुत टाइम से चल रहा है। Should this not now be a public health emergency in India? गुस्सा करने की जरूरत नहीं है, पर गुस्सा आता है। And it's around this time every year that air pollution peaks in Delhi and northern Indian states. So that was all about Santra, why he called us filthy and how we should work upon this. Santra is gone, but what about the future? What about 2050 something? Scroll in के इस आर्टिकल की माने आप तो 1,60,000 लोग सिर्फ क्लाइमेट चेंज से मरेंगे 2050 में। ये इतनी भयावह स्थिति हो जाएगी। देश संकट में है। In 2050, 30 Indian cities will face water risk because of the climate change. डूबने लगेंगे। नहीं करो, तुम नहीं करो। सीएम डीएम के पास का कुछ नहीं। अगर हमने अभी कुछ नहीं किया ना तो 2025 तक जो दिल्ली में हवा बह रही है ना, वो इतनी ज्यादा खतरनाक, प्रदूषित और हानिकारक हो जाएगी कि दुनिया की सबसे डेडलीस्ट एयर हो जाएगी।
और 30,000 से ज्यादा लोग मारे जाएंगे। ओके, नाउ हियर इज द बिग क्वेश्चन एंड नेशन रियली वांट्स टू नो फॉर हाउ लॉन्ग वी विल क्राई। गवर्नमेंट क्या कर रही है ये तो आपको पता है, पर हर वक्त रोना गाना, पोल्यूशन, ये वो सब थर्ड क्लास है, कब तक चलेगा? कुछ लोगों ने काम किया और हमको भी करना चाहिए उनसे इंस्पायर होके। बात करते हैं। His name is विकास चंद्रा and he is working for गंगा रिवर for past 20 years. गंगा नदी को प्रदूषण मुक्त करने के मिशन में जुटे पटना के गुड्डू बाबा को कीचड़ और गंदगी, गंगा में बहती लाशों की दुर्गंध या सरकारी निकम्मापन कुछ भी डिगा नहीं पाया। ये लोग इंस्पिरेशन है और इनको देख के हम सबको आगे आना चाहिए और इनसे इंस्पायर होना चाहिए। जो डेड बॉडीज गंगा में बहा दी जाती है ना, ये उनको मैनुअली लेकर उनको जलाते हैं, गाड़ते हैं। सर, ये तो गोल्ड है। जोडी अंडरहिल, शी इज अ वेस्ट वॉरियर एंड पीपल कॉल हर गार्बेज गर्ल। लोग हिमालय पे जाके जो गांड मस्ती कर लेते हैं और वहां पे गंदगी करके आ जाते हैं, ध्यान नहीं रखते। ये सब लोग जो गंदगी फैलाते हैं, इन्होंने एक एनजीओ बनाया, उसका नाम रखा वेस्ट वॉरियर्स, और ये वहां की सफाई करती है, यूके की है। कुछ तो सीख लो। चल बा। I couldn't believe that a country so beautiful with such beautiful people had such a major garbage problem everywhere that you went. Jannat, she's cleaning Dal Lake, and she's cleaning Dal Lake from 2018 when she was 5. A 7-year-old girl, Jannat, has been cleaning the world-famous Dal Lake for the last 2 years. And now her name has been published in a textbook at a Hyderabad school. मैं एक कहानी आपको इसलिए सुना रहा हूँ कि हमारा भी कुछ दायित्व होता है। मतलब हम कब तक सरकार के भरोसे रोते रहेंगे? लौड़ा का सरकार है। खैर, कुछ वो तो कर भी नहीं रहे कुछ। खैर, नमिता बनका इन्होंने 8,000 टॉयलेट्स बनाए। अतुल भिड़े, इन्होंने तो कमाल काम किया है। He constructed 200 toilets by his own in Solgaon village. So people are doing such great work. We should also take inspiration and do something for our country. अभी एक बहुत से इनिशिएटिव लिया है कि आप अगर रोड पे कचरा फेंकोगे तो वो कचरा उठा के आपके घर के बाहर फेंको। Unique way to try and change the attitude and habits of irresponsible citizens who dump their garbage on the road. बेस्ट है, ऐसे लोग सुधरेंगे। To collect the garbage and home deliver it to those who have no qualms about strewing up roads and clogging drains. But now here is the big question. What our government did for this? Here is the answer. मेरे कपड़े फाड़े, मुझे चाटे मारे और पूछा अच्छे दिन कब आएंगे। किया ना स्वच्छ भारत, 4,000 करोड़ 2014 से लेकर 19 तक हमने खर्च किए और 530 करोड़ तो एडवर्टाइजिंग पे खर्च किए हैं। वाह, मोदी है तो मुमकिन है। ये फकीरी है। इस प्रकार की बचकाना बातें किसी के गले नहीं उतरती, लोग मजाक उड़ाते हैं। Look at India. It's filthy. अरे मतलब लोग कह रहे हैं कि संतरे को स्वच्छ भारत पे भरोसा नहीं है, इसमें कानून पे भरोसा नहीं है। एक बार मुलाकात कर, हम तुझे भरोसा दिलाएंगे। चूतिया तो तू है। No, but we have to find out what actually happened in Swachh Bharat. Yes, they achieved some milestones. 600 मिलियन लोगों को एक्सेस टू टॉयलेट मिली है, लेकिन अगर आप वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और यूएनएसएफ की रिपोर्ट पे जाओ तो अभी 60% लोग हमारे यहाँ मतलब खुले में हगना बंद करो। Because according to this report, 93.4% of households still going in. बाहर में जो हगेगा अपना गू खाएगा। मजा ही नहीं आता है, खुले में ही जाते हैं, हवा लगती होगी। पीपल तले पा देंगे और नदी नारे हगने जाएंगे। नहीं, पर 2014 में 100 मिलियन टॉयलेट्स बनाए गए हैं, ये कहा गया गवर्नमेंट के द्वारा। ये झूठ है, झूठ है, झूठ है। It's a big problem for us and a big shame. And yeah, did you see the movie Toilet? It's a threat for women. So we have to take this thing seriously. I mean, what is this? एक बात मैं बताता हूँ, ये सोचने वाली बात है। एक रिपोर्ट हमको मिली इस रिसर्च के दौरान कि टॉयलेट बना देने से काम नहीं होता। नहीं, लोगों को जाना भी चाहिए, खैर, पर ये जो बनाने के बाद जो वेस्ट मैनेजमेंट है ना, छी क्या बात कर, खैर, ये जो वेस्ट मैनेजमेंट है ना, इस पे क्या किया गया, इस पे काम क्या किया? टॉयलेट बना के छोड़ दिया, उसके बाद उसका वेस्ट मैनेजमेंट क्या? ये एक फेलियर था इस रिपोर्ट के हिसाब से। एंड इन इंडिया दिस इज द नंबर, दिस मच टन्स ऑफ म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट पर डे। इतने सारे टन्स में से सिर्फ 83% ही कलेक्ट होता है और उसमें से भी सिर्फ 30% को ट्रीट किया जाता है। व्हाई आई एम टेलिंग यू ऑल दिस? बिकॉज गवर्नमेंट इज एक्चुअली कॉन्सेंट्रेटिंग टूवर्ड्स मेकिंग टॉयलेट्स। What about the waste management? छी, बहुत ही गंदी बातें कर रहे हैं हम।
तू टट्टी है, चल पर ये जो टट्टी है इसको सही तरीके से इस्तेमाल करना भी तो चाहिए ना। आफ्टर ऑल दिस, हाउ कैन वी डील विद दिस प्रॉब्लम? Yes, there are few methods. We can use solar energy as much as we can. Solar energy, not wind energy. और इसलिए न्यूक्लियर एनर्जी, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी। और पता नहीं कुछ लोगों को समझाओ कि खुले में हंगना बंद करे। ये आंटी कितने दिनों से नारे लगा रही है, सुने। हाँ ये, you know, there are few really good ideas and we should adopt them. You know, mobile apps to report dirty areas and some people are working on it. आइडिया तो बहुत है, पैचो लोग करने वाले नहीं है। अभी यही बात है, अभी एक इंडियन जो इंडिया में रहता है तो खुल के गंदगी करता है, लेकिन वही अगर यूके या यूएस में जाएगा तो संभाल के कचरा फेंकता है, पता नहीं क्या है। खैर, एक है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी, इसको भी हमको यूज करना चाहिए। आइडियाज बहुत है, हमको भी चेंज होने की जरूरत है ताकि हम ये जो अपना देश है इसको और साफ और बहुत सुरक्षित रख सके। खैर, ये चल रहा है, ये बात मोदी मीडिया करेगा नहीं इसलिए हमने कर दी। अच्छा लगे तो शेयर करना, तब तक डांस एंजॉय करो, सब्सक्राइब द चैनल। गेट द फक आउट ऑफ हियर। और इस वीडियो में अगर गाली गलौज थोड़ी ज्यादा हो गई हो तो सॉरी, इसका सेंसर्ड वर्जन आपको फेसबुक पेज पे मिलेगा और डिस्क्रिप्शन सेक्शन में जाके लाइक जरूर करिएगा, बहुत कुछ है आपके लिए वहां। हो सकता कौन लगाएगा? अरे कोई नहीं लगा रहा था। क्यों लगाएगा? वही तो बात है, क्यों लगाएगा, क्यों लगाएगा, ये खुद से पूछना चाहिए था आपको। खैर, ये इस टाइप की गोदी नंबर 5। यस गाइस, दिस गोदी, लास्ट वीक देयर वाज अ हैशटैग दीपक चौरसिया कौवा है। No, it's not mine. It was trending on Twitter. It was trending, guys. मैं दीपक चौरसिया तुझे चैलेंज करता हूँ, भरने पत्रकार कि हम जैसे को अगर बिठाना है तो कम से कम सम्मान करना सीख। Honestly, भाई के लिए बुरा लग रहा था कि मोदी जी गए और उन्होंने तोतों को अपने हाथ पे बिठाया और उनके साथ खेल रहे थे। कौवा क्यों नहीं? Yeah, come on, Mr. Modi should keep a crow so he will feel happy. ये वाला तोता तो ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहा है। इसको डालो मार्गदर्शक मंडल में। इसको डालो मार्गदर्शक मंडल। एक बार और बोला तो UAPL लगा दूंगा। And after BND's face morphing, yeah, this is time to our own Kauwa. Alright guys, this is Godi number 3. Yes, Arnav arrest and all, but yeah, it's a sad news. ये जी ग्लोबल प्रेस फ्रीडम का एक इंडेक्स होता है जिसमें देश में प्रेस को कितनी स्वतंत्रता प्राप्त है उसके लिए उनको दिया जाता है, और इसमें हमारी 2 रैंक नीचे आई है पिछले सालों की अपेक्षा। पर हमारे जावड़ेकर जी ने कहा है सब चंगा सी, पर ये एक वरिंग साइन है। Just see this, in 2010 we were at 122 and in 2020 we are at 142. I mean 20, drop of 20. लौड़ा का सरकार है। खैर, उम्मीद करते हैं जल्दी से हम अपनी रैंकिंग इंप्रूव कर लेंगे। उसी बीच ये तिहाड़ी का एक बहुत ट्रोल हो रहा है कि क्या पत्रकारिता छोड़ देनी चाहिए, तो लोग पूछ रहे भाई तूने पत्रकारिता करी कब थी? उनकी करतूत को पूरे देश ने देखा था। इस मामले में दोनों संपादक जेल भी जा चुके हैं। Alright guys, this is number 2 Godi and everybody is talking about Arnav's arrest. मुझ पुलिस ने मुझे मारा। What about our गेंडा स्वामी? अरे मतलब ऐसे कौन घेरता है यार? He spread so much communal hatred. डॉक्टर हेडगेवार जी ने 1925 में सपना देखा कि ये देश हिंदू राष्ट्र है और हिंदू राष्ट्र रहेगा। याद होगा आपको जब हमारे गेंडा स्वामी गार्डन से चारा खा के निकल रहे थे। सोचिए, जामिया के जिहादी अगर आपके जिलाधिकारी और हर मंत्रालय में सचिव होंगे तो क्या होगा? So yeah, this happened to him. देखो जी, किसी के साथ हिंसा होना हम उसका समर्थन नहीं करते, पर ये जो टीवी चैनल्स है ना, ये जिस तरह की बातें करते हैं, जिस तरह की नफरत फैलाते हैं, उससे देश के लोगों का जीना मुश्किल हो जाता है। यहाँ पे बदतमीजी हो रही है, देखिए यहाँ पे बदतमीजी हो रही है, यहाँ पे बदतमीजी हो रही है, देखिए यहाँ पे बदतमीजी हो रही है। सुरेश चौहान के जी, सर आपके खिलाफ, अरे हाथ तो छोड़िए, हाथ छोड़िए।